ہندوستان میں یہ عقیدہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے کہ ایشور بعد انسانوں کی شکل میں ظہور لیتا ہے۔ اسی عقیدے کے مطابق سری رام چندر، سری کرشن اور مہاتما بدھ کو ایشور کے اوتار سمجھا جاتا ہے۔ ہندوستان میں مذہبی پیشواؤں کو ایشور کے اوتار سمجھ کر ان کی مورتیوں کو بھگوان کے روپ میں پوجا بھی گیا۔ دنیا بھر میں سب سے زیادہ مورتیاں مہاتما بدھ کی بنائی گئیں اور سری رام چندر اور سری کرشن سے زیادہ ان کی پرستش کی گئی، کیونکہ بدھ دھرم ہندوستان سے نکل کر پورے مشرق بعید میں پھیل گیا تھا۔ مہاتما بدھ دیوتاؤں کے قائل نہ تھے، خدا کو ایک مانتے اور نجات آخروی پر یقین رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنے ماننے والوں کو وصیت کی تھی کہ مرنے کے بعد ان کے راہ کی پوجا نہ کی جائے، مگر یہ حقیقت بڑی دلچسپ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پوجا انہی کی ہوتی ہے۔ روپا واقعی ایک خوبصورت مقام تھا اور اسے چھوڑتے ہوئے کچھ یوں لگا جیسے میں ایک ہنستی بنستی دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ وہ بدھ سرائے اور جس میں ہم نے رات کاٹی بستی کے آخری سرے پر واقع تھی، اور یہیں سے ایک پرپیچ راستہ شمالی پہاڑوں کی طرف نکلتا تھا، جس کی طرف پیگو نے ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا تھا۔ کچر اسی راستے پر ہانک دیے گئے۔ روپا کو پیچھے چھوڑ کر ہم شمال مغرب کی جانب بڑھتے رہے۔ وہی پہاڑوں کا پرہیبت سلسلہ تھا۔ ان کی ڈھلانوں پر ربڑ کے جنگلات کی دل فریبی تھی۔ پیچو گم کھاتی پہاڑی پگڈنڈیاں تھیں جو ناگنوں کی طرح ادھر سے نکلتی اور ادھر کو غائب ہو جاتی۔ ان پگڈنڈیوں پر جنگلوں میں کام کرنے والی عورتوں اور مردوں کے ہیولے حرکت کرتے دکھائی دیتے تھے۔ یہاں زندگی کئی کٹی پھٹی لہروں کی مانند چلتی پھرتی نظر آ رہی تھی، مگر 4-5 میل کے بعد جنگلات چھٹنے لگے اور ان کی بجائے ساگوان اور دوسرے درختوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اسی سفر میں پہاڑی درختوں کے یہی جھنڈ دلچسپی کی واحد ذریعہ تھے۔ 8-10 میل کی مسافت انہی کے خوبصورت نظاروں میں طے ہو گئی۔ راستہ صاف تھا، رفتار بھی تیز تھی۔ وقت گزرنے اور سفر کٹنے کا احساس بھی نہ ہو سکا، لیکن آگے دنیا ہی بدلی ہوئی نظر آئی۔ درختوں کے جھنڈ ختم ہو گئے، اب ننگے پہاڑ سینہ تانے سر اٹھائے خاموش کھڑے تھے۔ راستہ تنگ اور دشوار گزار ہوتا چلا گیا، مگر معلوم ہوتا تھا کچر بھی اس راستے پر چلنے کے عادی ہیں اور ان کے مالک بھی۔ وہ بے خوف آگے بڑھتے رہے۔ یہ دنیا تو صرف میرے لیے نئی تھی۔ سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ ان پہاڑوں پر نہ تو کسی بستی کے آثار تھے، نہ دور دور تک کوئی انسان ہی دکھائی دیتا۔ بس میں تھا، پیگو تھا، 2 خچر تھے اور ان کے مالک۔ اوپر آسمان کی نیلگوں وسعتیں، نیچے ننگے پہاڑوں کا پرہول سناٹا جو خچروں کی ٹاپوں سے مجروح ہو رہا تھا۔ ارد گرد دہشت تھی، ویرانی تھی اور سفر خاموشی سے جاری تھا۔ ہم روحوں کی مانند چپ چاپ کسی نئی دنیا کی طرف بڑھ رہے تھے، اور اس ماحول میں یہ احساس بار بار میرے ذہن کو ڈس رہا تھا کہ میں مہذب دنیا سے بتدریج دور اور دور ہوتا جا رہا ہوں۔ 15-16 میل چلنے کے بعد دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے ہم ایک ندی کے کنارے آ گئے۔ یہ ندی دور کہیں برفانی چوٹیوں کے سینے سے نکلتی اور پہاڑوں کے دامن میں بہتی مشرق کی طرف چلی گئی تھی۔ اس کے کناروں پر کہیں کہیں رویدگی بھی تھی اور لمبی لمبی شاخوں والے چھتری دار درخت بھی۔ پانی میٹھا اور سرد تھا۔ کھانے کے بعد ایک درخت کے نیچے چند لمحے آرام بھی کیا۔ سفر میں کہیں نہ کہیں وقفہ تو ضرور ہوتا ہے۔ یہ وقفہ اسکولوں، دفتروں، کارخانوں، کھیتوں اور کھلیانوں میں ہر جگہ ضروری ہے، جسے ہم زندگی کا انٹرول کہتے ہیں۔ ہمارے آج کے سفر کا انٹرول پہاڑی ندی پر ہوا تھا، پیگو نے کہا۔ یہ ندی روپا اور رتنا گری کے بالکل درمیان واقع ہے۔ آدھا راستہ ادھر، آدھا راستہ ادھر۔ بیچ میں یہ پانی کی لکیر ہے جو اس سفر کو 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہے۔ روپا سے چلیں یا رتنا گری سے، یہاں پڑاؤ ضرور ہوتا ہے۔ میرا اپنا ذہن آدھا ادھر ہو کر رہ گیا تھا۔ پیچھے کی فکر بھی تھی، آگے کا خیال بھی، اور میں خود تقدیر کے نصف راستے پر بیٹھا سوچ رہا تھا کہ آخر سروپ ساؤ جی مہذب دنیا سے اتنی دور ایک پہاڑی ویرانے میں کیوں رہتے ہیں، اور انہوں نے مجھے کس مقصد کے لیے اپنا سیکرٹری مقرر کیا ہے۔ آدمی کا ذہن پریشان ہو تو شمشان کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور خیالات
उस शमशान के भूत प्रीत बन जाते हैं। शिलांग में 200 रुपए की नौकरी, जिसे मैं लॉटरी समझ बैठा था, अबू हुसन के ख्वाब की तरह सोते जागते का किस्सा मालूम हुई थी। मगर फर्क ये था कि अबुल हुसन अपने झोंपड़े में सोता था और रात को आंख जुबैदा महल में कुछ लिबास कनीजों के दरमियान खुलती थी। मेरी आंख उन चीटल नंगे पहाड़ों पर खुली थी और अब यही नौकरी एक भारी जुबा मालूम होने लगी थी। उस सारे सफर के दौरान में मैंने पीगू को बेहद होशियार और चाको चौबंद पाया। वो एक खामोश तबाह मगर खुश अखलाक खिदमत गुजार भी था और एक चालाक रहबर भी, जो मुसाफिर को मंजिल का पता और निशान बताए बगैर अपने साथ लगाए रखने का गुर जानता था। अगर वो चाहता तो बाटी परा ही में सफ़र के उन मरहलों से आगाह कर सकता था जिनसे मुझे गुजरना था, मगर उसने मसलतन खामोशी मुनासिब समझी। मुसलसल सफ़र में मंजिल की दूरी का एहसास न होने दिया और मुझे उन ऊंचे उजाड़ पर्वतों तक ले आया था जहां जिंदगी खुद एक भारी चट्टान मालूम होने लगी थी। स्वरूप जी ने पीगू को मेरी रहबरी के लिए इसलिए मुकर्रर किया था कि वो घड़ी के सुइयों की तरह ठीक रफ्तार से चलने वाला आदमी था, जो गिरदो पेश से बेनियाज सिर्फ अपने मकसद और सफ़र का ख्याल रखता था। पहाड़ी नदी पर भी जहां सफ़र का वक्फा महज इसलिए हुआ था कि मज़ीद चलने के लिए जिस्मों की तवानाई बहाल कर ली जाए, वो वक़्त और फ़र्ज से गाफिल नहीं था। उसने वक्फे को तूल नहीं दिया और पहाड़ों के साए ढलते देखकर फौरन सफ़र पर तैयार हो गया। दोनों साइज शायद उसके इशारे के ही मुंतज़िर थे। झटपट खच्चर लेकर आ गए। हमने सामान लपेटा, पड़ाव उठाया, खच्चरों पर सवार हुए और पुर इसरार सफ़र शुरू हो गया। अब हम हिमालय के उन सरबफलक पहाड़ों की जन्म बढ़ रहे थे जिनका रफ़ीओ अजीम सिलसिला तिब्बत से जा मिलता है और जिनकी बुलंदियां आसमान के सीने में खुब रही थीं। रास्ता पहले से कहीं ज़्यादा दुश्वार गुजार हो गया था। खनकी भी बढ़ गई थी। मैंने वो कोट पहन लिया जो शिलांग से लेकर चला था। शमाल की तरफ ऊंचे पहाड़ों पर बर्फ चमक रही थी। बाज़ चोटियां तो बर्फ के सफ़ेद कलश सजाए हमारे सरों पर खड़ी थी, जो 15 हज़ार फुट ऊंची थी। उनके दरमियान फैली हुई घाटियों में आवारा हवाएं खाना बदोश लड़कियों की तरह गोया झांझ बजाती रक्स कर रही थी। मगर जब पुरशोर हवाओं का कोई काफिला चक्कर खाता पहाड़ी दरों से गुजरता तो यूं लगता जैसे उजाड़ पर्वतों और कोहस्तानी वीरानों की रूहें चिल्ला रही हों। कहीं ऊंची चट्टानों का बेतरतीब सिलसिला था, कहीं ढलानों पर दरख्तों की टुकड़ियां थी, कहीं नंगी गहरी खाइयां और हम सूरज के फरार होती रोशनी में उनके हाशियों पर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे। अगर उस तंग लकीर को, जो कभी चट्टानों के दामन और कभी घाटियों के सीनों से गुजरती थी, रास्ता कहा जा सकता है, तो ये रास्ता मदारी का वो रस्सा था जिस पर चलते हुए हर लम्हा जान का खतरा दरपेश रहता है। मुझे इस रास्ते पर सफ़र करने का तजर्बा नहीं था, या फिर मैं ज़िंदगी की इस खतरनाक लकीर को अबूर करते हुए डरता था। इसलिए खच्चर की सवारी छोड़कर पैदल चलने लगा। पतली सी पहाड़ी पिगडंडी से जब निगाह नीचे जाती तो सैकड़ों फुट गहरे खड्ड और खाइयां टूटी फूटी कब्रों का मंजर पेश करती थीं। मुझे देखकर पीगू भी खच्चर से उतर आया और आगे आगे चलने लगा। हम मौत की उसी लकीर पर थे कि सूरज मगरबी पर्वतों के पीछे रुपोश हो गया और चारों तरफ शाम के मलजगे साए लहरा गए। उन्हीं सायों में हम मौत की टेढ़ी मेढ़ी लकीर से गुजरकर एक चीटल घाटी में दाखिल हुए। आगे रास्ता हमवार था, इसलिए फिर खच्चरों पर सवार हो गए। खच्चर थक गए थे, मगर पीगू उनकी रफ्तार बढ़ाने पर इसरार कर रहा था। उसने बोटानी साइसों से कहा, अंधेरा बढ़ जाने से पहले हमें पुल से गुजर जाना चाहिए। अच्छा, तो अभी कोई पुल भी अबूर करना है, मैं सोचने लगा। पीगू ने कहा था कि हम शाम तक रत्नागरी की वादी में पहुंच जाएंगे, मगर शाम होले होले रात का काला कफन ओढ़ रही थी और सफ़र जारी था और मंजिल अभी तक नज़रों से उजल थी। शायद पीगू ने मेरे जहन में उभरने वाले ख्याल की आहट सुन ली थी। अंधेरे में पलट कर बोला, पुल पार कर लेने के बाद हम रत्नागरी के करीब पहुंच जाएंगे। आगे सिर्फ 3 मील का रास्ता है। मेरे नज़दीक अब 3 और 300 मील में कोई फ़र्क नहीं था। जहन तो पुल के लफ्ज़ पर रुक गया था और मैं सोचने लगा कि शायद रास्ते में कोई ख़तरनाक पहाड़ी नाला पड़ता होगा जिसे अबूर करने के लिए पुल तामीर किया गया होगा।
मगर पौन मील का रास्ता तय करने के बाद जब खच्चर एक जगह रोक दिए गए तो मुझे पहाड़ी नाला तो कहीं नजर ना आया, अलबत्ता अंधेरे में एक पुल जरूर दिखाई दे रहा था। और ये देखकर मैं दमखुद रह गया कि हम जिस घाटी पर खड़े थे उसे 25-30 फुट चौड़ी और हद्दे नज़र तक फैली हुई दरार ने, जो सैकड़ों फुट गहरी थी, 2 हिस्सों में काट कर रख दिया था। उस दरार पर दरख्तों के लंबे लंबे तने रखकर ऊपर लकड़ी के मोटे तख्ते जोड़ दिए गए थे और इस तरह मौत की उस गहरी और लंबी सुरंग पर एक चौबी पुल बनाया गया था जिसकी चौड़ाई 4 फुट से ज्यादा न थी। रात के अंधेरे में जो होले होले गहरा होता जा रहा था, ये मौत का पुल मेरे ज़हन पर मकड़ी के जाले की तरह झूलने लगा, क्योंकि उस 4 फुट चौड़ी लकीर पटरी पर कोई जंगला, कोई सहारा नहीं था। दोनों सिमतें खुली हुई थी और अगर उस चौबी पटरी पर चलते चलते कोई जानवर बदुक या फिसल जाए तो यही सैकड़ों फुट गहरी तारीक दरार उसकी आखिरी आरामगाह भी, जहां गिरकर उसकी हड्डियों का भी सुरमा बन जाता। तो ये था वो पुल जिसके पार रत्नागिरी की वादी थी। हम खच्चरों से उतर आए। अंधेरा तो हो चुका था। उस अंधेरे में मुझे पीगू की आवाज़ सुनाई दी। वो मुझी से मुखातब था। पुल ज़रा एहतियात से पार करना होगा, आप मेरे पीछे पीछे चले आए। ये कहकर वो आगे हो लिया और मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। दोनों साइस अपने अपने खच्चर की बाग संभाले मेरे अकब में थे। पीगू तो बेधड़क दूसरे किनारे पर पहुंच गया, लेकिन मेरे पांव यूं बोझल हो रहे थे जैसे किसी ने बेड़ियां डाल दी हों और उनका भारी लोहा चलने ना दे। दरअसल ये मेरे एहसास की बेड़ियां थी जो उस गहरी और तवील दरार को देखकर पैदा हुआ। गैर महफूज पुल खौफ की जंजीर बनकर मेरे कदमों से उलझ रहा था। चलते हुए सोचने लगा कि अगर अंधेरे में पाँव गलत पड़ गया, कदम डगमगा गए या कोई चौबी तख्ता ही टूट गया तो सीधा पाताल में गिरूंगा और मौत की उस गहरी खाई में गिरने से पहले ही रूह मेरे जिस्म को छोड़ चुकी होगी। आखिर जिस्म को सैकड़ों फुट की गहराई तक पहुंचते पहुंचते 2-2.5 मिनट तो लग ही जाएंगे, जबकि रूह का पंछी सिर्फ 2-2.5 सेकंड में जिस्म का पिंजरा खाली कर जाता है। बस इस ख्याल से एक चक्कर सा आया, बदन कांपा, साथ ही कदम डगमगा गए। मगर ठीक उसी लम्हे पीकू ने लपक कर मुझे सहारा दिया और हाथ पकड़कर दूसरे किनारे पर ले आया। ये सब कुछ चंद लम्हों में हो गया। आखिर पीजू अगर मुझे पकड़ ना लेता तो शायद मैं पुल से लड़ गया होता और आज ये अजीबोगरीब कहानी मुआर्ज़े तहरीर में ना थी। दूसरे किनारे पर पहुंचकर जब मेरे हवास दुरुस्त हुए तो मैं खुद हैरान था कि घर से निकलकर मौत के रास्ते पर कहाँ भटक रहा हूँ। दोनों साइस अपने अपने खच्चर समेत पुल पार कर आए तो पीगू मुझसे मुखातब हुआ। किशोर बाबू, आप बेफिक्र खच्चर पर सवार हो जाएं। अंधेरा बेशक बढ़ गया है, फिर भी जानवर अपने रास्ता पहचानते हैं। साइस ने सहारा देकर मुझे खच्चर पर सवार होने में मदद दी और फिर हम आगे बढ़े। बेडोल खुरदरी चट्टानों और ऊंची पहाड़ियों से घिरी हुई ये वसी और इस घाटी, जिसे खतरनाक दरार ने 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था, उस नए पहाड़ी सिलसिले पर ख़त्म हुई थी जो पूर्व से पश्चिम के रुख फैला था। ये नया सिलसिला पुल से करीबन 1 मील आगे शुरू हुआ। रात के अंधेरे में पहाड़ काले इफरीतों की तरह सर उठाए खड़े थे और मैं सोच रहा था कि इस तारीकी में उनके टेढ़े मेढ़े हाशियों पर चलना जान जोखों से कम ना होगा। मगर यह अंदेशा गलत साबित हुआ। हम पहाड़ों के दरमियान एक दर्रे से गुजरने लगे। दोनों तरफ झाड़ियों और छतरीदार बादलों को फैलाए दरख्तों के स्याह झुंड भी नजर आए। जब हवा उनके शाखों से गुजरती पहाड़ी जंगलों की मखसूस शोकार सुनाई देती, मगर मैं कोई फैसला ना कर सका कि हवा की ये आहें और कराहें पहाड़ों के सीने से निकल रही हैं या मेरे कलेजे से। दर्रा निसफ मील से ज्यादा तवील नहीं था। उसका घुमाव काट कर जब हम बाहर निकले तो सामने एक वसी और नाहमवार ढलान दूर तक गहरी वादी से पीठ में उतरती चली गई थी और जहां ढलान खत्म होती थी वहां कुछ रोशनियां सी टिमटिमाती नजर आईं, जैसे तारीख फिजा में जुगनू टांक दिए गए हों। वो रोशनियां किसी बस्ती का पता दे रही थी और ऊपर छोड़ने के बाद उन पहाड़ी वीरानों में पहली बार किसी आबादी के आसार दिखाई दिए थे। पीगू ने अपना खच्चर दर्रे के दहाने पर रोक लिया, फिर दूर टिमटिमाती रोशनियों की तरफ हाथ लहराकर बोला, वो है सामने रत्नागिरी। रोशनियों को उस लकीर तक जो ढलान के हाशिए पर थरथरा रही थी, फासला 1.5 मील के लगभग होगा। हमारे पीछे पहाड़ी दर्रे में, जिसे हमने अबूर कर लिया था, तंद आवारा हवाएं जख्मी परिंदों की मानद फड़फड़ा रही थी।
और सामने रत्नागिरी की वादी थी। हम आहिस्ता आहिस्ता नशीब में उतरने लगे। रास्ता कहीं सीधा, कहीं टेढ़ा, कहीं हमवार और कहीं ना हमवार था, मगर खच्चर आसानी चलते रहे। वो बस्ती के जिसके आसार सामने थे, फिल वाक़या एक दूर अफ्तादा पहाड़ी वीराने में वाक़या थी, जिसके इर्द गिर्द ऊंचे पर्वतों के स्याह हिसार खड़े थे। स्वरूप साहू जी ने पहली ही मुलाकात में ये बात वाज़ेह कर दी थी कि वह दुनिया से अलग थलग एक पहाड़ी वीराने में रहते हैं, मगर मैं यही समझा था कि उनका क़याम शहर से दूर किसी ऐसी पहाड़ी मकाम पर होगा जहां आमदो रफत में कोई दुश्वारी ना होगी। बाद लोग तबन शहरी हंगामों से दूर भागते और वादी से हटकर रहना पसंद करते हैं। सो स्वरूप जी भी किसी ऐसी ही जगह रहते होंगे जो शहर से चंद मील के फासले पर होगी, लेकिन ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि अब उनकी रिहाइश महज़ब दुनिया से इतनी दूर हिमालय के ऊंचे पहाड़ों के दरमियान एक ऐसी बस्ती में होगी जहां शायद बेवक्ते ज़रूरत कोई तभी अमदाद भी ना मिल सके। आखिर वैसे वीराने में क्यों रहते हैं जहां ना तार बरकी का सिलसिला है, ना डाक वगैरह की आमदोरफ़त का कोई इंतज़ाम, हत्ता कि अगर आदमी मर जाए तो बकौल मिर्ज़ा गालिब कोई नूहा घर भी ना मिले। मेरा ज़हन इसरार के इन्हीं अंधेरों में भटक रहा था। दूर लरसी कामती रोशनियों से अंदाज़ा होता था कि रत्नागिरी एक छोटी सी बस्ती है जहां 50-60 मकान होंगे। उन मकानों में मुख्तसर आबादी होगी जिसकी ज़रूरतें उसी पहाड़ी वीराने तक महदूद होंगी और बस्ती के लोग पांचों उंगलियों की तरह मिलजुल कर रहते होंगे। मगर जो जो हम आगे बढ़ते गए, मेरे तसव्वुर का नक्शा भी बदलता चला गया। वादी में उतरते ही एक वहशतनाक सन्नाटे में मेरी कांच की सी कुछ फहमियाँ चकनाचूर हो गईं। तसव्वुर का वो आखिरी सहारा भी जिसे मेरे जहन ने एक बस्ती का शक्ल दे दी थी, एक झटके से टूट कर रह गया, क्योंकि यहाँ किसी बस्ती का नामो निशान ना था। दूरों नज़दीक कहीं मकान थे, ना खेत और ना किसी आबादी का पता चलता था। ऊंचे और काले काले पर्वतों से घिरे हुए उस वसीओ अरीद वीराने में जहां मरगटों किसी अजल गिरफ्ता मनहूस खामोशियां तारी थी, बस संगो चूब की एक किला नुमा इमारत जिसका नाम सावगारी था यको तनहा खड़ी थी और उसके ऊंचे बरंजी फाटक पर कुछ आदमी खौले बियाबानी की तरह मशीलें उठाए चुपचाप शायद हमारा ही इंतजार कर रहे थे। ये मंजर देखकर मेरा कलेजा धक से रह गया। माहौल की वहशत दिलो दिमाग को डसने लगी और उस वीराने में सावगारी किसी जादूगर तिलस्मी इमारत मालूम होने लगी। भारी जब्बों में मलबूस वो मशल बरादर जिनकी तादाद 7 थी, बिल्कुल भूतों की मानद बेहिसो हरकत खड़े किसी और ही दुनिया की मखलूक नजर आए। उनके वजूद पर मुझे उन 7 खबीस देवताओं का शुबा हुआ जो हिंदी शास्त्रों के बकौल वीरानों में रहते और कभी कभी चमगादड़ों का रूप धार कर स्याह रातों में शिकार के लिए प्रवास करते हैं। इस असना में हमारा मुख्तसर काफिला फाटक पर पहुंच गया, मगर उन 7 में कोई अपनी जगह से न हिला न आगे बढ़ा। अगर वो हमारा इस्तकबाल ही करने के लिए न जाने कब से खड़े थे, तो इस्तकबाल का ये तरीका भी बड़ा अजीबो गरीब था। फाटक के करीब दोनों खच्चर रुक गए। पीकू और मैं नीचे उतरे और जो ही मेरे पांव जमीन पर पड़े, वो 7 भूत एक एक कदम आगे बढ़े और अपनी गर्दन झुकाकर बड़े मिकान के अंदाज में मेरे रस्मी स्वागत करने लगे, लेकिन उनके मुंह से एक लफ्ज़ तक ना निकला। पीगू ने उन पर कोई तवज्जो नहीं दी, जैसे वो मट्टी के मादू या फिर ताश की डुकियां तुकियां हों, लेकिन अपने एक लिबास और एक सिरकात और सकनात की वजह से वो 7 मुझे अजीब से लगे। बल्कि सच तो ये है कि मशलों की कामती थरथराती रोशनियों में वह सब किसी अमल के मामूल दिखाई देते। जादू के पुतले मालूम हुए जिनकी डोर किसी और के हाथ में थी, लेकिन रत्नागिरी की इस वीरान वादी में उनका अमल, उनका जादूगर कौन था? पीगू के इशारे पर दोनों साइस खच्चरों की लगामें थामे आगे बढ़े तो 7 भूतों ने काई की तरह छटकर उन्हें रास्ता दिया और साइस आगे पीछे बरंजी फाटक में दाखिल हो गए। जानवरों के गुजरने के बाद पीगू ने मुझे इशारा किया, फिर मेरा अटैची केस उठाकर खुद भी मेरे साथ साथ हो लिया। मशल बरादर भूतों में से किसी ने जुबान तक न हिलाई। जब मैं पीगू के साथ फाटक की तरफ बढ़ा तो वह 7 चुपचाप हमारे पीछे चलने लगे। बरंजी फाटक एक डेवड़ी में खुलता था जिसकी पथरीली दीवारों पर कदीम बूद तर्ज के नक्शो निगार खुदे हुए थे, लेकिन डेवड़ी में दाखिल होते ही जिस चीज़ ने मुझे मुतासर किया वो सामने की दीवार में पुराना सागवानी दरवाज़ा और उसकी चौखट के ऊपर एक महराब नुमा ताकचे में भगवान बुद्ध की मरमरी मूर्ति थी जो आलती पालती मारे बैठी थी।
सात मशालों की रोशनी में संगे मरमर की वो मूर्ति किसी जिंदा आदमी की मानद हमें घूर रही थी, जिसकी आंखों में पुतलियों की जगह सब्ज रंग के इंतहाई चमकीले और बेशकीमत जमर्द जड़े हुए थे। उस मूर्ति में एक अनजानी कशिश थी। उसकी घूरती हुई पुतलियों में एक चमकता दमकता सवाल था। मरमर के उन होठों पर एक खामोश आवाज थी, थारो केशव, और तुम यहाँ क्या लेने आए हो? 200 रुपये माहवार तेरे लिए यकीनन एक बड़ी रकम है, मगर तू नहीं जानता कि वीरानों में लोग कमाने नहीं, निर्वाण हासिल करने आते हैं। मैं हैरान सा खोया खोया सा भगवान की मूर्ति को तके जा रहा था। मूर्ति की जुमर्दी आंखों और मरमरी होठों ने मुझसे जो सवाल किया वो दरअसल मेरे ही परेशान ख्यालात की आवाज़ थी, और मुझे अपने ही सवाल का जवाब देना था, मगर मेरे पास कोई जवाब ना था। अगर था तो उसे जुबान तक लाने की हिम्मत ना थी। बस किस्मत की लकीर, हालात की मजबूरी और ज़माने की गर्दिश मुझे यहाँ खींच लाई थी। भगवान बुद्ध की वो मूर्ति जो मेरे सामने मुजस्समे सवाल बन गई थी, बेशक आला मरमर की थी। आंखों में दुनिया के बेहतरीन पन्ने जड़ दिए गए थे, लेकिन जमर्द और मरमर भी तो पत्थर हैं, और पत्थर के सामने एक जिंदा इंसान अपने दुखों की किताब क्यों खोले? जिंदगी की मजबूरियां तो हर आदमी के साथ लगी रहती हैं। गौतम बुद्ध जब जिंदा थे, इंसानी दुखों और मजबूरियों के ये अफसाने उनके जीवन की किताब में भी तहरीर हुए थे। फिर मैंने मन ही मन में मूर्ति से बातें की। भगवान, आप अपनी जवान और सुंदर गोपा को कपल वस्तु के राजमहल में छोड़कर जंगलों में निकल गए थे। मैं अपनी बूढ़ी चाची को पूर्वी बंगाल के शहर रंगामती में छोड़कर उस वीराने में आ गया हूँ। फर्क सिर्फ ये है कि आपने मुक्ति और निर्वाण के लिए राजमहल छोड़ा, मैंने अच्छी नौकरी और अच्छी जिंदगी के लिए अपना घर त्याग दिया। आदमी को दुनिया में सिर्फ जीने के लिए भी घर छोड़ना पड़ता है। सातों मशल बरादर भूत मेरे अकब में खड़े थे। मशलों की जर्द शुआएं भगवान बुद्ध की मूर्ति पर कांप रही थी, जिसकी आंखें जैसे मुझ पर हंसने लगी थीं। उस खामोशी में अचानक मैंने अपने पीछे साऊ गाड़ी का बरंजी फाटक बंद होने की आवाज़ सुनी। पलट कर देखा तो 7 मशल बरादर इंसानी भूतों के दरमियान 8वां आदमी, जो गालबन चौकीदार था, भारी क्वार्टर बंद करके लोहे की जंजीर चढ़ा रहा था, और मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मुझ पर महजब दुनिया का दरवाज़ा बंद हो गया है। डेवड़ी के सागवानी दरवाजे से गुजरकर मैं सुर्ख पत्थरों की एक गुलामी गर्दिश में दाखिल हुआ, और उसे पार करके साऊ गाड़ी के वसीओ रीद सेहन या पार्क में पहुंच गया, जिस पर किसी उजड़े हुए खेत का गुमान होता था। पीगो मेरी रहनुमाई कर रहा था। सातों मशल ब्रदर चुपचाप हमारे पीछे पीछे थे, और हम सेहन के दरमियानी रवश पर आगे बढ़ रहे थे। मशलों की लड़ती हुई रोशनी में हमारे तवील बेहिंगम साए आगे आगे भागे जाते थे। लेकिन ज़रा ठहरिए, बेहतर ये होगा कि पहले मैं साऊगारी का एक मुक्त सिरसा खाका पेश करता चलूं, ताकि उस कहानी को पढ़ने वाले उसकी वसत और साकत का अंदाज़ा कर सकें। वैसे भी आदमी को चाहिए कि वह जिस इमारत के अंदर जाए उसका हदूद अरबा अच्छी तरह जहन नशीन कर ले, क्योंकि दाखिल होने का दरवाज़ा तो हर घर और हर इमारत में होता है। देखना ये चाहिए कि वहाँ से बाहर निकलना भी कभी कोई दरवाज़ा है या नहीं। साऊगारी की इमारत कमोबेश 8 एकड़ रकबे पर फैली हुई थी। वहाँ ज़मीन और उसकी मलकियत का झगड़ा तो था नहीं। ये इमारत रत्नागिरी की पूरी वादी में भी तामीर हो सकती थी, जो कई मील के तूल अर्ज में फैली और पहाड़ों से घिरी हुई थी। मगर साऊगारी तमीर करने वाले कारीगरों ने उस वादी का वही किता पसंद किया था जो आम सीता से निस्बतन ऊंचा था। ये एहतियात इसलिए भी मद्देनजर रखी गई थी कि बारिश का पानी नशीब की तरफ बहता रहे और इमारत को कोई नुकसान न पहुंचे। पुराने ज़माने में किले तमीर करने वाले इमारत की कुर्सी ऊंची रखते थे। साऊगारी की कुर्सी भी ऊंची थी। 8 एकड़ रकबे के इस किते पर चारों तरफ पत्थरों की 15-16 फुट बुलंद और मजबूत फसील थी। मगर ये अजीब बात थी कि इतनी वसी और किला नुमा इमारत में दाखिल होने का सिर्फ एक दरवाज़ा था, और मैं उसी दरवाजे से साऊगारी में दाखिल हुआ था। ये दरवाज़ा जनूब की सिमत था, जबकि 2 मंजिला रहायशी मकानात का सिलसिला एक छोटे से महल्ले का नक्शा पेश करता था। शमाल की तरफ वाक़या और कम अज़ कम 2 एकड़ पर मुश्तमिल था। जैसे मैंने बताया है, साऊगारी की किला नुमा इमारत थी। शमाल की जनब 2 मंजिला इमारत और बाकी 3 अतराफ फसील के साथ साथ छोटे छोटे कमरों की कतार, जैसे आम तौर पर किलों में सिपाहियों की बारकें होती हैं। उन कमरों के सामने हर जानब तवील गुलाम गर्दिशें थी। दरअसल ये गुलाम गर्दिशें पूरी इमारत के चारों तरफ
एक गोड़ सी बनाती और 2 मंजिला रिहायशी हिस्से के सामने से भी गुजरती थी। उनका सिलसिला जनूबी दरवाजे की डेवढ़ी से शुरू होता और साहूगारी की चारों तरफ एक खूबसूरत हाशिया बनाता था। अगर आदमी डेवढ़ी से निकलकर एक जानब से गुलाम गर्दश में चलता तो पूरी इमारत के हाशिए पर घूमता हुआ फिर वहीं आ जाता जहां से चला था। इमारत का सहन या मैदान या पार्क कम से कम 4 एकड़ पर फैला हुआ था। उसी से उसकी वसअत का अंदाजा लगाया जा सकता था। यहाँ फूलों के पौधे थे, बेतरतीब क्यारियां, छोटे छोटे खेत जिनमें सब्जियां काश्त की जाती थीं और उनके मंडेरों पर जंगली फूलों की झाड़ियां थीं। कहीं कहीं कुबड़े दरख्त थे और उनके दरमियान एक दूसरे को कता करती हुई रोश रवशें या पिगडंडियां थी। मगर बड़ी रवश मालन जनूबन वाक़या थी जो सेन को 2 हिस्सों में तकसीम करती। जनूबी दरवाजे की डेवढ़ी सीधी रिहायशी हिस्से की तरफ चली गई थी और मैं और पीगू के हमरा उसी रवश पर चल रहा था। हमारे अक्कब में 7 आदमी भूतों की तरह बे आवाज़ चल रहे थे। मैं हैरान था कि उनके कदमों की चाप क्यों सुनाई नहीं देती। अचानक पलट कर देखा तो 7 नंगे पांव नजर आए, इतनी बुलंद पहाड़ी मकाम पर जहां सर्दी से आदमी के दांत बजने लगते थे और बदन कांप जाता। उनका नंगे पांव फिरना यकीनन एक अचंबा था। शायद दुनिया के आदमी नहीं थे और उन पर गर्मी सर्दी का असर ना होता था। उस रवश पर जो किसी बेवा की मांग की तरह उजड़ी सी लग रही थी। चलते चलते मेरे सीने में कितने ही गम जाग उठे, ज़हन में कितने ही वसवसे रेंगने लगे। साहूगारी बुद्ध तर्ज़े तमीर की कदीम इमारत थी। उसकी उम्र सीधा डेवढ़ी, बूढ़ी दीवारें और माजी के जख्मों से चूर पुरानी गुलाम गर्दिशें, अनगिनत मौसमों और वक़्त की बेशुमार गर्दिशों से गुजरी थीं और अंधेरी रात में महज़ब दुनिया से कोसों दूर एक पहाड़ी वीराने में ये यको तनहा इमारत उन रूहों का मस्कन मालूम होती थी जो मुक्ति और निजात के लिए बेचैन रहती हैं। चारों तरफ पहाड़ों का हैबतनाक सन्नाटा मुसल्लत था जिसे कभी कभार जख्मी हवाओं की कर्बनाक सिसकार मजरू कर देती। मशलों की थरथराती रोशनी में हम खामोशी से रोशनी के उस नुक्ते की तरफ बढ़ते रहे जो रिहायशी हिस्से के वस्त में नजर आ रहा था। करीबन 1.5 फरलांग का फासला तय करने के बाद हम 2 मंजिला इमारतों के करीब पहुंच गए जिनके सामने से गुजरती हुई गुलाम गर्दश में स्वरूप साहू जी गर्म गाउन पहने खड़े थे और पास ही भूरे रंग के लिबास में एक लड़का जिसका कद 3 फुट से ज्यादा नहीं था, लालटेन उठाए खड़ा था। दूर से यही लालटेन रोशनी का नुक्ता बनकर नजर आ रही थी और जो ही मैं गुलाम गर्दश के करीब पहुंचा, स्वरूप जी जल्दी से आगे बढ़े और बड़ी गर्म जोशी से अपना सर्द हाथ मेरे हाथों में देकर बोले, थारो केशव, मैं इस वीराने में तुम्हारा स्वागत करता हूँ। उनके अल्फाज में एक अजीब सी बात थी जिसे मैं कोई बैनी ना पहना सका। अगर तवील और गैर यकीनी सफ़र ने मुझे परेशान कर दिया था, फिर भी उनका दिल रखने के लिए कह दिया, मैं वादे के मुताबिक हाजिर हो गया हूँ। स्वरूप जी मेरा हाथ थामे 1-2 लम्हे गुलामे गर्दश में खड़े रहे। फिर उन्होंने बताया, हर आदमी की कोई ना कोई कमज़ोरी होती है। ये पहाड़ी वीराना मेरी कमज़ोरी है। तुम्हें बुलाया तो यहाँ मैंने है, मगर ख्वाहिश किसी और की है। ये एक नई बात थी जिसने मुझे हैरान कर दिया। मैं तो किसी और को नहीं जानता। शायद मेरी आवाज़ में घबराहट थी क्योंकि किसी और का इंकशाफ अचानक हुआ था। कौन है वो? एक दिन खुद ब खुद जान लोगे, ये कहकर वो पीगू से मुखातब हुए जो मेरे पीछे खड़ा था। पीगू, कशीफ जी का सामान उनके कमरे में पहुंचा दो। पीगू मेरा अटैची केस उठाए उस डेवढ़ी में दाखिल हो गया जो रिहायशी हिस्से के ऐन वस्त में वाक़या थी और स्वरूप जी उन डेवढ़ी के खुले दरवाजे के पास ही खड़े थे। फिर लबों ने मशल बरादर की तरफ देखा जो गुलाम गर्दश से परे शेर में मट्टी के पुतलों की तरह खामोश खड़े थे। मैं उनकी खिदमत गुजारी पर हैरान और खामोशी का मतलब समझने से कासर था। स्वरूप जी ने खुद ही बताया, ये साहूगारी के बख्शू हैं। इन 7 ने अपनी ज़ुबानें सिर्फ इसलिए कटवा दी हैं कि इनके मुंह से कोई बुरी बात ना निकल सके। मैं इस इतला पर मजीद हैरान हुआ और उन्हें हैरत से देखने लगा। उनकी खामोशी का मामला तो हल हो गया, लेकिन ये हकीकत भी कितनी खौफनाक थी कि साहूगारी के ये 7 बख्शू अपनी ज़ुबानें कटवा कर गोयाई से महरूम हो चुके थे। सुराब जी ने उन्हें हाथ से इशारे से कुछ समझाया और वो मशले उठाए चुपचाप एक तरफ चल दिए। मैं आलम हैरत में खड़ा उन्हें देखता रहा। ये बात मेरी समझ से बाला पर थी कि उस पहाड़ी वीराने में जहाँ दुनिया को तैयार कर उन्होंने स्वरूप जी के साथ रहना मंजूर कर लिया था,
जहां कोई दुनियावी हंगामा न था, समाज और बरादरी का झगड़ा न था, तबकाती कशमकश और दौलत की तकसीम न थी। उन बख्शुओं को अपनी जुबानें कटवाने की क्या जरूरत पेश आई? गार्डमैन स्वरूप जी ने मेरी इस ज़हनी कफियत को भांप लिया था। मेरे कांधे पर हाथ रखकर कहने लगे, थारू केशव, इस दुनिया में सब कुछ होता है। हम ख्वाहिशात की टहनियाँ काटते छांटते हैं, मगर वो फलती फूलती रहती हैं। जो लोग दुनिया से भागते हैं, दुनिया उनके पीछे भागती है, और कभी कभी दुनिया से पीछा छुड़ाने के लिए आदमी को कुछ कुर्बानी भी देनी पड़ती है। आओ अंदर चलें। ये कहकर उन्होंने उस लड़के के हाथ से लालटेन खुद पकड़ ली, जो जमीए की तरह उनके साथ ही लगा हुआ था। वो डेवड़ी में दाखिल हुए तो मैं भी उनके पीछे हो लिया। डेवड़ी के उस जानब कदीम वाजा की खुली और नीम तारीख सी राहदारी थी, जो कम से कम 10 फुट चौड़ी और 100 फुट तवील होगी। वहां सिर्फ एक कंदील रोशन थी, जिसकी मध्यम रोशनी में यह सुरंग नुमा राहदारी अजीब मंजर पेश कर रही थी। राहदारियों की दोनों सिमतों में चंद दरवाजे थे। 15-20 मिनट कदम चलने के बाद स्वरूप जी ने मगरबी जानब का एक दरवाजा खोला। लालटेन की रोशनी में एक कमरे के खदोखाल नजर आए, जो काफी खुला और मामूली सामान से आरास्ता था। दरवाजे की दीवार के साथ साथ एक चौबी जीना ऊपर जाता और घूमकर दूसरी मंजिल की बालकनी पर खत्म होता था। स्वरूप जी ने कहा, यह तुम्हारी निशस्तगाह है, मगर सोने का कमरा ऊपर है। आओ तुम्हें दिखाऊं। लालटेन की जद रोशनी में जीने की पूरी 13 सीढ़ियां चढ़कर और एक चुभी बालकनी से गुजरकर हम सोने के कमरे में पहुंचे, जहां चारपाई पर बिस्तर बिछा था। एक छोटी मेज भी मौजूद थी, जिस पर मेरा अटैची केस धरा था। अटैची केस पीकू ही यहाँ छोड़ गया था। एक दीवार पर कपड़े टांगने के लिए खोटियां लगी थी। जुनूब की तरफ छोटा सा गुसलखाना भी था। यूं लगा जैसे तवील सफर तय करके किसी पहाड़ी सराय में आ गया हूँ, जहां मुसाफिरों की जरूरत का हर सामान मौजूद है। अचानक स्वरूप जी कहने लगे, इस वीराने में तुम्हें शहर का सा आराम तो नहीं मिल सकता, फिर भी मैंने इस बात का ख्याल रखा है कि यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ ना होने पाए। मेरे ज़हन में कई सवाल गीली लकड़ियों की तरह सुलग रहे थे। मैं बहुत कुछ जानना, बहुत कुछ पूछना चाहता था, और मैंने पूछ ही लिया।